Hello friends, welcome to the course of reasoning. So today we will learn about our next topic, number ranking. In this topic, questions are asked based on the positions. Let's start with the first question. And the question number 1. In a class of 50 students, M is 8th from top, H is 20th from bottom. How many students are there between M and H? Class is of 50 students and he is saying that M is 8th from top. So this is the top position and M's rank is 8th. H is 20th from bottom. This is bottom line and H position is 20th. How many students are there between M and H? क्योंकि हमें यहाँ पर बताया गया है that there are 50 students. तो total ये जो टॉप बॉटम रैंकिंग है, ये जो स्टूडेंट पोजीशंस हैं, ये 50 स्टूडेंट्स की हैं. हमें यहाँ एश्योर किसके बारे में है? सबसे पहले तो इन 8 स्टूडेंट्स के बारे में, बिकॉज 7 आर सिटिंग बिहाइंड M and 8th position is of M. Similarly, 19 students are behind H and this position is of H. So to count out the number of students between M and H, and they are 50 minus 8 plus 20. So 50 minus 28. So the students between M and H are 22. टोटल हमारे पास था, जिन स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ हम एश्योर हैं उनका हमने ऐड किया 8 plus 20, that is 28, and after subtracting it 22 is the answer. So option first is the correct answer of this question. Question number 2. In a row of 35 children, M is 15th from the right end and there are 10 children between M and R. What is R's position from the left end of the row? 35 children are there in the row and he says M is 15 from the right end. ये हमने right hand से बनाया क्योंकि ये arrow इस तरफ है, so this is the right end. And he says M is on 15th position. After that, there are 10 children between M and R. अब यहाँ सिर्फ इतना कहा है कि 10 children है M और R के बीच में, लेकिन यहाँ ये बात कंफर्म नहीं होती कि R कहाँ बैठेगा. Either R is to the left of M or to the right of M. ये यहाँ पे determine नहीं हो रहा. That's why data is inadequate to solve the question. हम बता ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जब तक ये position definite नहीं होगी ये calculate नहीं किया जा सकता. So question option number 4 can't be determined is the correct answer. Question 3. Q types faster than R but not as fast as V. T types faster than R. S types faster than V. Who among the 5 types the fastest? 5 persons की यहाँ बात की गई है और उनकी ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन है Q types faster than R but not as fast as V. कि Q R से तो फास्टर है लेकिन उतना नहीं जितना कि V. तो ये हमारे पास सिर्फ फर्स्ट लाइन की इंफॉर्मेशन जो है वो डिनोट की हमने. आफ्टर दैट ही सेज S टाइप फास्टर देन V. अब क्योंकि हम ऑलरेडी V को प्लेस कर चुके हैं तो इसलिए S टाइप फास्टर देन V, सो S विल बी द फर्स्ट. देन ही सेज T टाइप्स फास्टर देन R. T R से भी फास्ट टाइप करता है लेकिन यहाँ पर ये कंफर्म नहीं होता कि T की पोजीशन क्या होगी. इट इज नॉट सर्टेन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ T अमंग दीज 5. अब T को अगर हम यहाँ रखते हैं तो भी वो फास्टेस्ट है, अगर T को Q से पहले ले आए तब भी वो फास्टेस्ट रहेगा. दैट्स वाई ये सर्टेन नहीं है. सो हु विल टाइप द फास्टेस्ट इट कांट बी डिटरमाइंड. देयरफॉर ऑप्शन 5th इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नन ऑफ दीज. इन सच क्वेश्चंस जब तक सर्टेन नहीं है हम, जब तक कोई पोजीशन यहाँ पर हम प्लेस नहीं कर सकते, इसका आंसर जो है वो डाटा इनएडुकेट, कांट डिटरमिन या फिर नन ऑफ दीज ऑप्शन में ही रहेगा. Moving to the next question. Question number 4. In a row of 25 children facing north, direction is given here.
facing north, W is 5th to the right of R, who is 16th from the right end of the row. इस लाइन में जो ये who है, ये इंफॉर्मेशन हमें R के बारे में दे रहा है. W is 5th to the right of R, as well as R is 16th from the right end of the row. So what is W's position from the left end of the row? सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी है 25 चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ. लेट अस से कि पूरी एक रो है जिसमें 25 चिल्ड्रन है. ही सेज W is 5th to the right of R and R is 16th from the right end of the row. रो का ये लेफ्ट एंड है and this is the right end. He says R is on 16th position. Let us mark here, this is R and R's position is 16 from the right end. अब जब आपने यहाँ पे R को प्लेस किया है तो अगर हम यहाँ R का लेफ्ट और राइट मेंशन करें, दिस इज द राइट हैंड ऑफ R एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड ऑफ R. He says W is 5th to the right of R. R के 5th राइट में है, so this is 1, 2, 3, 4 and 5th position. Now the question arises कि ये नंबरिंग जो हम कर रहे हैं 16th के बाद R के बाद, ये इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होगी. सो कैंडिडेट्स, जब आप यहाँ पर राइट एंड से इसको आपने बनाया है, ही इज 16 फ्रॉम द राइट एंड, इट मीन्स कि यहाँ से राइट एंड से 1 से काउंटिंग शुरू हुई, 1, 2, 3, 4 और तब यहाँ जाकर 16 पे पहुंची. तो अगर कोई पर्सन इसके राइट हैंड पे है तो यहाँ पर नंबर्स जो है वो डिक्रीज होंगे, इंक्रीज नहीं. अगर उसने राइट, सपोज कोई पर्सन इधर से आ रहा है और 16 के बाद उसे आगे बढ़ना है तो नंबर इंक्रीज होगा, और 16 से पीछे जाना है तो नंबर यहां पर डिक्रीज होगा, नॉट इंक्रीज. सो 5th राइट का मीनिंग हुआ 16 से अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले, 15, 14, 13, 12 एंड देन दिस इज 11th. तो सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे R की पोजीशन नहीं W की पोजीशन पूछी गई है, दैट्स वाई W का एक रैंक हमें पता होना चाहिए जो हमने राइट हैंड से निकाल लिया, एंड दैट पोजीशन इज 11th. नाउ अब क्योंकि हमें W की जो है सेकंड पोजीशन यहां पर लेफ्ट हैंड से बतानी है, सो दैट्स व्हाई दिस इज W's रैंक. हियर इट इज रैंक 1 प्लस रैंक 2 माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल. अगर हमें टोटल फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि किसी एक पर्सन का दोनों रैंक हमें पता होने चाहिए. दोनों रैंक का मतलब है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एज वेल एज फ्रॉम द राइट हैंड ऑल्सो. सो दिस इज रैंक 1 प्लस रैंक 2 देन माइनस 1. दिस माइनस 1 इज बिकॉज यहां पर हम ट्वाइस काउंट करते हैं. जब हम दो रैंक्स की बात कर रहे हैं तो एक पर्सन को ट्वाइस हमने काउंट किया है, दैट्स वाई हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल. अब अगर हम इस फॉर्मूले पर अपनी गिवन इंफॉर्मेशन को रखते हैं, 11th इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ W, दैट इज रैंक 1. रैंक 2 हमें फाइंड आउट करना है, माइनस 1 हम करेंगे और ये इक्वल टू किसके होगा, जो हमें यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, एंड टोटल इज 25. टोटल हमारे पास 25 है. सो दिस इज 11 प्लस रैंक 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 25. अब हमें रैंक 2 फाइंड आउट करना है, तो ये माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, एंड देन माइनस 11. सो द पोजिशन ऑफ W फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो इज 15th. या फिर जैसे आपने यहां पर फाइंड आउट किया था 11th रैंक, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. टोटल हमारे पास है रैंक 1 हमारे पास आ गया है, और ये अगर हम इसको माइनस कर दें एंड देन 1 इसमें ऐड किया जाए तो वो रैंक 2 के इक्वल होगा. अल्टीमेटली ये यही फॉर्मूला है जिसको आप किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हैं. अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते, दिस इज 25, रैंक हमारे पास 11 था, प्लस 1 क्योंकि हमें दोबारा से पोजीशन देनी है, दैट्स वाई हम इसमें 1 ऐड करते, और वो इक्वल किसके होता, रैंक 2 के. अल्टीमेटली दिस इज 14 प्लस 1, अगेन आंसर इज 15. तो आप जैसे चाहें इसको फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. सो इन दिस क्वेश्चन option number 1, 15th is the correct one answer, because W's position from the left